وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں آئندہ مالی سال کے مجوزہ بجٹ سے متعلق اجلاس، مشیر خزانہ کی بریفنگ، کورونا سے متاثرہ صنعتی شعبے کی بحالی اور تاجر برادری کو ہر ممکن آسانیاں فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم کا آئندہ بجٹ میں غیر ترقیاتی اخراجات میں کمی لانے پر زور۔ ماضی میں صحت کے شعبے کو نظر انداز کیا گیا۔ ہیلتھ ریفارمز کا مقصد سہولیات کی بہتری کے ساتھ نظام میں موجود خامیوں کی اصلاح ہے۔ کورونا کے خلاف جنگ میں ڈاکٹرز اور طبی عملے کی خدمات لائق تحسین ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی انصاف ڈاکٹرز فورم کے وقت سے گفتگو۔ سینٹ کے اجلاس میں مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم و تشدد کی خلاف ورزیوں پر مذمتی قرارداد منظور۔ قرارداد میں اقوام متحدہ سے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم و تشدد کے خلاف فوری کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ لاک ڈاؤن کو آج 10 ماہ مکمل، 4 خواتین سمیت 142 کشمیریوں کو شہید کیا گیا۔ بھارتی فوج کی کارروائیوں سے بچے سب سے زیادہ متاثر۔ گزشتہ 31 برس کے دوران 897 کشمیری بچوں کو شہید کیا گیا۔ ملک میں کورونا وائرس سے اموات اور کیسز میں اضافہ۔ ایک دن میں ریکارڈ 4,896 نئے کیسز کی تصدیق۔ مجموعی تعداد 79,249 ہو گئی۔ 67 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ 31,198 افراد صحت یاب۔ دنیا بھر میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 67 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ 3,93,000 سے زائد جان کی بازی ہار گئے۔ 32,51,000 سے زائد افراد صحت یاب۔ امریکہ میں 1,10,000 سے زائد ہلاک، 19,24,000 سے زائد متاثر۔ برازیل میں ہلاکتوں کی تعداد 34,000 سے تجاوز کر گئی۔ متاثرہ اضلاع میں ٹڈی دل کے خلاف بھرپور آپریشن۔ 2.5 کروڑ ہیکٹر رقبے پر سروے، 5,15,600 ہیکٹر رقبے پر کنٹرول آپریشن۔ پاکستان تحریک انصاف کا اپنے منشور اور وعدے کے مطابق جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے لیے ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور ایڈیشنل آئی جی پولیس کی تعیناتی کا فیصلہ۔ ان اسامیوں پر جلد ہی آفیسرز کی تعیناتی کر دی جائے گی۔ 1 جولائی سے یہ افسران اپنے فرائض انجام دینا شروع کر دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان گجدار کا ٹویٹ۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ماحولیات کا دن منایا جا رہا ہے۔ دن منانے کا مقصد ماحول کے تحفظ کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ موجودہ حکومت کے بھی ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات، کلین اینڈ گرین پاکستان اور بلین ٹریز سونامی پروگرام سرسبز و شاداب پاکستان کی جانب ایک اہم قدم۔ امریکہ میں پولیس کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے سیاہ فام شہری جارج فلائیڈ کی آخری رسومات میناپولیس شہر میں ادا۔ جارج فلائیڈ کے خاندان اور سیاستدانوں سمیت سینکڑوں افراد کی شرکت۔ کئی شہروں میں 9ویں روز بھی لوگ کرفیو کو نظر انداز کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے۔ بروکلین برج پر بھی ہزاروں افراد کا احتجاج۔ سیاہ فام شہریوں کے خلاف امتیاز سلوک کے خاتمے کا مطالبہ۔
اور آسٹریلوی کرکٹ پر نئے بونچال کا خطرہ منڈلانے لگا. بورڈ ہر صورت معاوضوں سمیت تمام اخراجات میں 25% کٹوتی پر ڈٹ گیا. کرکٹرز نے آمدنی تخمینہ مسترد کر دیا. بورڈ کو اگلے مالی سال میں 140 ملین سے زیادہ کے نقصان کا خدشہ ہے. چیف ایگزیکٹو کرکٹ آسٹریلیا کیون رابرٹس. وزارت قومی غذائی تحفظ و تحقیق اور پاکستان آرمی کی مشترکہ ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے بھرپور اور مؤثر آپریشن کر رہی ہیں. تمام متعلقہ حکومتی اداروں کو ہدایات دی جا چکی ہیں کہ ٹڈی دل کے حملے کی اطلاع پر تمام دستیاب مشینری کو متحرک کر کے بروقت ٹڈی دل کو تلف کریں. کاشتکار حضرات سے گزارش ہے کہ ٹڈی دل کے حملے کی صورت میں حکومتی ٹیموں کے پہنچنے تک روایتی طریقوں سے ٹڈی کو فصلوں اور باغات سے دور بھگائیں. ٹڈی دل کے حملے سے قبل اپنی فصلوں کے ارد گرد احتیاطی طور پر پروفینوفاس کا اسپرے کریں. اجتماعی طور پر بھی متاثرہ علاقوں میں اپنی مدد آپ کے تحت ٹریکٹر اور بڑے اسپریئرز تیار رکھیں اور ٹڈی کے حملے کی صورت میں لمڈا کا اسپرے کریں. بالغ ٹڈی کے حملے کے بعد بلا تاخیر متاثرہ زمین میں ہل چلا کر ہر صورت انڈے تلف کریں. غیر آباد اور صحرائی علاقوں میں ٹڈی دل کا غیر معمولی جھنڈ دیکھنے پر ہوائی اسپرے کے لیے NLCC سے فوراً رابطہ کریں. ٹڈی دل کی موجودگی کی اطلاع دینے یا متعلقہ معلومات کے حصول کے لیے NLCC کے ہیلپ لائن نمبرز پر رابطہ کریں. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. میں ہوں سمینا رانا اور میں ہوں علی جنت. کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان. تفصیلی خبروں کے لیے چلتے ہیں واپس علی اور سمینا کے پاس. ناظرین، ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی. خبر نامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ صنعتی عمل کا فروغ اور کاروباری برادری کو ہر ممکن آسانیاں فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے. اسلام آباد میں آئندہ مالی سال کے مجوزہ بجٹ کے حوالے سے اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے زور دیا کہ بجٹ میں کورونا سے متاثرہ صنعتی شعبے کی بحالی اور فروغ، حکومت کی جانب سے دی جانے والی سبسڈیز کے بہترین اور مؤثر استعمال کو یقینی بنانا اور عوام پر پڑنے والے غیر ضروری حکومتی اخراجات کا بوجھ کم کرنے پر خصوصی توجہ دی جائے. وزیر اعظم نے آئندہ بجٹ میں غیر ترقیاتی اخراجات میں کمی لانے پر بھی زور دیا ہے. انہوں نے کہا کہ سرکاری اور نجی شعبے کی شراکت وقت کی اہم ضرورت ہے، لہذا ملکی ترقی کی ضروریات اس امر کی متقاضی ہے کہ ترقیاتی منصوبوں میں نجی شعبے کی بھرپور شرکت کو یقینی بنایا جائے. وزیر اعظم نے مشیر خزانہ کو ہدایت کی ہے کہ ترقیاتی اخراجات کے حوالے سے تخمینوں کو صوبوں کی مشاورت سے حتمی شکل دی جائے. اجلاس میں مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے رواں مالی سال کے محصولات، اخراجات اور آئندہ بجٹ کے تخمینوں کا خاکہ پیش کیا. انہوں نے آئندہ مالی سال کے لیے بجٹ کی ترجیحات پر بھی بریفنگ دی ہے. وزیر اعظم کو FBR میں اصلاحات کے حوالے سے اب تک کی پیش رفت سے بھی آگاہ کیا گیا. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کورونا کے خلاف جنگ میں ڈاکٹرز اور طبی عملے کی خدمات لائق کی تعریف ہے. اور انہوں نے کہا کہ پوری قوم انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہے. انصاف ڈاکٹرز فورم کے وقت سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ماضی میں ہیلتھ سیکٹر کو نظر انداز کیا گیا، جس کی وجہ سے عام آدمی کو صحت کی معیاری سہولیات تک رسائی میں مشکلات درپیش ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ موجودہ حکومت کی جانب سے صحت کے شعبے میں متعارف کرائی جانے والی اصلاحات کا مقصد ملک میں صحت کی سہولیات کو بہتر بنانا، عوام کو معیاری سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانا اور نظام میں موجود خامیوں کی اصلاح کرنا ہے. انصاف ڈاکٹرز فورم کی جانب سے وزیرستان میں اسپتال کے قیام کی تجویز پر بات کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ صحت کے شعبے میں اصلاحات کے لیے قائم ٹاسک فورس اس تجویز پر غور کرے گی. انصاف ڈاکٹرز فورم نے صحت کے شعبے میں اصلاحات پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا. وقت میں ڈاکٹر مدیر خان، ڈاکٹر سعید مصطفیٰ، ڈاکٹر جواد واصف، ڈاکٹر عاصم رزوی، ڈاکٹر سجاد، ڈاکٹر محسن رانجھا اور دیگر شامل تھے.
इस वक्त आपको बराह रास्त लिए जाएंगे सक्खर में हलीम आदिल शेख मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वो डाल लेंगे, ग्लिसरीन डाल के आंसू निकाल, रोना नहीं सही। आज आपने हमें हल बताना है। आज की तकरीर में आपने पॉलिसी देनी है। आज की तकरीर में आपने बताना है कि आपने सिंध के लिए क्या किया है। आज की तकरीर में कोई आप बेशक करे वफाक के ऊपर, आपने बताना है कि इस कोरोना के लिए सिंध में बगैर सिवाय मीटिंगों के, सिवाय नोटिफिकेशन के, सिवाय रोना धोना मचाने के, सिवाय हर रोज एक बुलेटिन सुनाने के आपने किया क्या? आपने इलाज के लिए क्या किया? आपने राशन कितना दिया? आपने कितने लोगों की अच्छा करोड़ों रुपए दिए गए कि फ्री के टेस्ट होंगे? कहाँ फ्री के टेस्ट हो रहे हैं? गरीब लोगों का कोई फ्री का टेस्ट नहीं हो रहा। पैसों में चंद टेस्ट हो जाते हैं इंडस्ट्री के अंदर। डिपार्टमेंट को देते हैं, बहुत सारे लोग मुख्तलिफ शोबों से जो है वो रहे कि ये बहाना बना के अफसरान ये दे रहे हैं, गवर्नमेंट ये कह रही है, काम नहीं हो रहा, उसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, काम सरकारी काम नहीं हो रहे, सिस्टम के काम हो रहे हैं, धंधे के काम हो रहे हैं। इस दौरान कोरोना को बहाना बनाकर कोटकी से गंदम निकलती है, कराची आने से पहले इनके चूहे खा जाते हैं। इस वक्त लाड़काना में इंक्वायरी चल रही है कि वहां जो पैसे के प्रोफेसर हाकिम अली अबड़ो साहब इंक्वायरी बता रहे हैं। इस वक्त काम नहीं हो रहे, लेकिन वर्क एंड सर्विसेज के अंदर धड़ाधड़ लाड़काना समेत ठेके कर दिए गए हैं। उमरकोट में, थर में के जी दफ्तर बंद है, बंद कमरों में ठेके कर दिए गए हैं। कोरोना सिर्फ रोने धोने के लिए है। सिंध हुकूमत का सिस्टम जारी है, सिंध हुकूमत के धंधे जारी हैं, उसको कोरोना से कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो साईं, आज रोना नहीं है, हम रो लेंगे, हमें बता देना, हम आके हु करके रो लेंगे, मर गए, लेकिन रोना नहीं है। तकरीर करनी है, सुननी है, हमने पॉलिसी सुननी है। मुझे पता था कि आपका प्लान है, आपने रो के सारा मीडिया को उसी तरफ ले जाना। साईं मुराद अली शाह को बड़ा दुख है तो इलाज करें आप, मेहरबानी। सक्खर में रहनुमा पीटीआई हलीम आदिल शेख मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत अवाम को उनके बुनियादी हुकूक नहीं दे रही, जिसकी वजह से हम अवाम के हक के लिए आवाज उठाते रहेंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कराची में तैयारा हादसे में शहीद होने वालों रज़ा नकवी, मुसर्रत यार खान, अफरा शाहिद, एरिक यास्मीन, शहनाज परवीन और जैनुल आरिफ के अहले खाना को टेलीफोन किया और शोहदा के लवाहिकीन से गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। सदर मुमलिकत का कहना था कि इस कौमी सानहे पर पूरे कौम सोगवार है। सदर मुमलिकत ने शोहदा के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की है। सेनेट में मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज का मुसलमानों पर जुल्म तशद्दुद और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर मजम्मत करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर ली गई है। इस करारदाद में अक़वाम मुत्तहिदा से ये मुतालिबा किया गया है कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म तशद्दुद के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। सेनेट का इजलास चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा जफरुल हक ने मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी और भारतीय जुल्म तशद्दुद के खिलाफ मजम्मती करारदाद ईवान में पेश की, जिसको मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया। वक्फा सवालात में सनत व पैदावार के वजीर हमाद हसन ने ईवान को बताया कि स्टील मिल्स में गुज़िश्ता 5 साल में तनख्वाहों की मद में 35 अरब रुपए दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मासी में हुकूमतें न स्टील मिल्स को बहाल कर सकें और न ही इसकी निजकारी कर सकें। स्टील मिल्स की निजकारी में हुकूमत निजी शोबे की शराकतदारी को शामिल कर रही है। एक और सवाल के जवाब में हमाद हसन ने ईवान को बताया कि IMF की पाकिस्तान के हवाले से तमाम रिपोर्ट्स उनकी वेबसाइट पर मौजूद हैं। IMF ने पाकिस्तान के इस्लाहाती इक़दामात को सराहा है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए तिजारत रिज़ाक दाऊद ने ईवान को बताया कि GSP+ के हवाले से हुकूमती इक़दामात के बायस 2022 तक यूरोपीय यूनियन ने GSP+ की शर्त खत्म कर दी है, जिससे पाकिस्तानी मसनूआत की यूरोपीय मंडियों में रिसाई में मदद मिलेगी।
और अब बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल की। मकबूजा कश्मीर में भारत फिस्ताई हुकूमत की तरफ से गुज़श्ता साल 5 अगस्त के बाद से जारी फौजी मुहासरे और सख्त लॉकडाउन को आज 10 माह मुकम्मल हो गए। कश्मीर मीडिया सर्विस के रिसर्च सेक्शन की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय फौजियों ने गुज़श्ता 10 माह के दौरान 142 कश्मीरियों को शहीद किया, जिनमें 4 खवातीन भी शामिल हैं। इस अरसे के दौरान भारतीय फौज और पुलिस एहलकारों की जानिब से पुरअमन मुजाहिरीन पर पैलेट गन्स और आंसू गैस समेत ताकत के वहशियाना इस्तेमाल से 1300 कश्मीरी शहीद किए गए, जबकि रिपोर्ट में कहा गया है कि फौज की जानिब से तलाशी और मुहासरे की कार्रवाइयों के दौरान पूरे मकबूजा इलाके में 910 से जायद मकानों को तबाह और 74 खवातीन की बेहुरमती की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक हुर्रियत रहनुमा, कारकुन, सियासतदान, सहाफ़ी, वकला और इंसानी हुकूक के अलमबरदार गुज़श्ता कई माह से मुसलसल घरों या जेलों में गैर कानूनी तौर पर नजरबंद हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मकबूजा इलाके में भारत की जालिमाना कार्रवाइयाँ आलमी बरादरी के लिए एक चैलेंज हैं और आलमी बरादरी को भारत को मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल करने के लिए दबाव बढ़ाना चाहिए। मजीद इसी बारे में आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की जारी कार्रवाइयों में गुज़श्ता 31 बरस के दौरान 897 कश्मीरी बच्चों को शहीद किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के रिसर्च सेक्शन की तरफ से जारी रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया है कि 1 जनवरी 1989 से रवां साल 4 जून तक शहीद होने वाले 95,557 कश्मीरियों में 897 कश्मीरी बच्चे शामिल हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस अरसे के दौरान मकबूजा इलाके में फौजियों के हाथों शहरियों के कत्ल की वजह से 1,07,790 बच्चे यतीम हो गए। मुल्क भर में कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी से इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 4,896 केसेस का इजाफा हुआ और 68 अफराद जाम बहक हुए। इस्लामाबाद में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में मुतासरा अफराद की तादाद 89,249 हो गई है और तादाद 1,838 हो गई है, जबकि अब तक 31,198 मुकम्मल सेहतियाब हो चुके हैं। विफाकी दरुल हुकूमत में 3,946, पंजाब में 33,144, सिंध में 33,536, खैबर पख्तूनख्वा में 11,890 और बलूचिस्तान में 5,582, गिलगित बल्तिस्तान में 852 और आज़ाद कश्मीर में 289 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हैं। इस्लामाबाद में नेशनल कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के इजलास में फैसला किया गया है कि कोरोना की सूरत हाल और इस हवाले से जरूरियात का जायजा लेने के लिए माहिरीन पर मुश्तमिल टीमें मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगी। कोरोना के हवाले से फोकल पर्सन डॉक्टर फैसल सुल्तान टीम के सरबराह होंगे। इजलास को बताया गया कि विफाकी दारुल हुकूमत में SOPs पर अमल न करने वाले 22 सनती यूनिट्स को सील कर दिया गया है। कोरोना SOPs पर अमल न करने पर गिलगित बल्तिस्तान में 13 और खैबर पख्तूनख्वा में 37 सनती यूनिट्स को जुर्माने किए गए। व्हाट्सएप के जरिए टेलीमेडिसिन के लिए 3,660 डॉक्टर्स ने साइन अप किया, जबकि 1,936 मरीजों ने डॉक्टर से अपने मसाइल पर बात की है। पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने इजलास को बताया कि अस्पताल में 26 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। नाज़रीन, जिंदगी एक नेमत है, इसे महफूज बनाएं अपने लिए और अपने खानदान के लिए। कोरोना वायरस को शिकस्त देने का मौसर तरीन तरीका एहतियात है। बलूचिस्तान में इस मूजी मरज को शिकस्त देकर जिंदगी की जानिब लौटने वाले अफराद का इस बारे में क्या कहना है, ये जानने के लिए देखते हैं आसिम रिजवान की खुसूसी रिपोर्ट।
गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 4,500 से ज्यादा अफराद में कोरोना की तशखीस के बाद पाकिस्तान में कोरोना पॉजिटिव एक्टिव केसेस की तादाद 56,213 हो गई है। तर्जुमान हेल्थ डायरेक्टोरेट बलूचिस्तान के मुताबिक सूबे भर में अब तक मजमूई तौर पर 5,582 से जायद कोरोना मस्बत केसेस सामने आए हैं, जबकि 53 अफराद इस मौलिक वायरस के हाथों जिंदगी की बाजी हार गए। सूबे भर में मुश्तबा मरीजों की तादाद 25,802 है। ताहम 2,037 अफराद ने बुलंद हौसले, आने अज़्म, एहतियात और हुकूमती हदायत पर मनमान अमल करके न सिर्फ इस जानलेवा वायरस को शिकस्त दी बल्कि अपनी और अपने प्यारों की जिंदगियां भी महफूज बनाई। मेरे शौहर जो हैं वो भी मीडिया से ही वाबस्ता हैं। पहले उन्हें कोरोना पॉजिटिव हुआ, साथ साथ हमारे घर में मुझे भी सिम्टम्स थे। हम सब अपने घर में ही आइसोलेट हो गए। अपने साथ साथ हमने वही एहतियाती तदाबीर जो डॉक्टर्स ने उस पर हमने अमल दरामद किया। कोरोना से हमने डर कर नहीं, इससे लड़ कर रहना है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे हमारे शहर में सूबे में वो एहतियात नहीं करते। इस मुल्क में मेरे तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो खुदा एहतियात करे और मास्क पहने अपने घरों में, वो अपने बच्चों पर, अपने खानदान के जो लोग हैं उस पर रहम खाएं। कोरोना वायरस के खिलाफ हरावल दस्ते में शामिल डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की फर्ज शनासी और लगन मिसाली है। अवामी खिदमत के दौरान वायरस से मुतासिर होने वाले डॉक्टर्स का कहना है कि वबा के फैलाव को रोकने के लिए अवाम इस मौलिक वायरस को संजीदा लें और हर मुमकिन एहतियात बरतें। कोरोना तो मुझे एक पेशेंट से लगा, टोटल ट्रीटमेंट से गुजरा हूँ इस चीज से। लोग इनको लाइट ले रहे, गलत ले रहे, मुझ पे गुजरा है। वाइड बलूचिस्तान ने यह फैसला किया है कि अवामी मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए हम यंग डॉक्टर्स अपने वार्डों में अपनी ड्यूटीज सरंजाम देने के साथ साथ वॉलंटियरली कोरोना के आईसीयू वार्ड में एक्स्ट्रा ड्यूटीज देने के लिए तैयार हैं। सूबे भर में कोरोना के फैलाव को कम से कम रखने और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जारी हुकूमती इक़दामात को कामयाब बनाने के लिए यंग डॉक्टर्स का फैसला वक्त की जरूरत और यकीनन काबिल इस्ताइश है। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। और नाज़रीन, ट्रैक, टेस्ट और करंतना के हिकमत अमली को अपनाते हुए कोरोना वायरस से निपटने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों समेत रावलपिंडी में टेलीमेडिसिन सेंटर का कायम किया गया है और लोग घर बैठे ऑनलाइन सेहत से मुतालिक मालूमात हासिल कर सकते हैं। तफसील बता रहे हैं रिजवान आरिफ। रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाने के लिए टेली मेडिसिन सेंटर कायम किया है, जो रावलपिंडी और इसके मुल्हिका इलाकों में मुख्तलिफ बीमारियों समेत कोरोना वायरस के मरीजों को हिदायत और रहनुमाई फराहम कर रहा है। नॉट ओनली रावलपिंडी रीजन, वो पंजाब से भी, इवन आउटसाइड कंट्री सिंध से भी वो इस नंबर को एक्सेस कर सकते हैं। 5 सेट ऑफ पीपल जो हैं उनके पास एंड्रॉइड फोन है और वो जो कॉल की प्रायोरिटी जो खाली होता है नंबर उस पर आती है और वो कोरोना के बारे में जो उसकी अप्रीहेंशन होती हैं, जो सवाल होते हैं, उनको एड्रेस करते हैं। और अगर वो हमारा डॉक्टर ये देखता है कि ये पेशेंट सीरियस है तो एट द सेम टाइम जो 1112 को कॉल करते हैं। अगर उसकी इतना सीवियर नहीं है तो वो उसको वहाँ ही एडवाइस भी कर देते हैं। RMU के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर उमर ने बताया कि टेली मेडिसिन सेंटर में 24 घंटे तरबियती अमला अवाम की खिदमत और कोरोना वायरस के मरीजों की रहनुमाई के लिए मौजूद है। फेस टू फेस यानी वेब पे बात कर सकते हैं, अपनी डिजीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं और नॉट ओनली कोरोना रिलेटेड, उसे और भी कोई डिजीज है, उसको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो जो रेलिवेंट डॉक्टर है फिर उस स्पेशलिटी का डॉक्टर भी मौजूद होता है, वो उससे कांटेक्ट करते हैं, उसको वो भी एडवाइस करते हैं, जिससे हमारे जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है उनको फैसिलिटेशन हुई है कि उसमें रश कम हो गया। पाकिस्तान का हर इदारा कोरोना वायरस जैसी आलमी वबा पर काबू पाने के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। ताहम कोरोना वायरस से बचाव और इस वबा पर काबू पाने के लिए TTQ ही वाहिद हिकमत अमली है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से शुरू किए गए सेहत के इस अहम मंसूबे से कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल पर काबू पाने में मदद मिल रही है। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, रावलपिंडी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने रावलपिंडी में टिड्डी दल से मुतालिक कायम नेशनल कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर के चीफ कोऑर्डिनेटर इंजीनियर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मुअज्जम एजाज ने टिड्डी दल पर काबू पाने से मुतालिक
की जाने वाली कोशिशों और इक़दामात से मुताल्लिक आगाह किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कौमी लाहे अमल के तहत नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर के इक़दामात की तारीफ की और कहा कि पाक फौज टिड्डी दल के तदारुक की खातिर सिविल इंतजामिया की मदद के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल इस्तेमाल करेगी। उन्होंने कहा कि टिड्डी दल पर काबू पाने के लिए मौसर इक़दामात की जरूरत है और खुराक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके और मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर मनफी असरात मुरतब न हों। हुकूमत ने इस हवाले से कौमी इमरजेंसी का निफाज कर रखा है। मुल्क भर में टिड्डी दल के हमले पर काबू पाने के लिए हवाई जहाजों और हेलीकॉप्टर्स की मदद से फजाई स्प्रे किया जा रहा है। नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर की टिड्डी दल से मुतालिक ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक टिड्डी दल से मुल्क भर के 47 अजला मुतासिर हुए हैं। बलोचिस्तान के 33, खैबर पख्तूनख्वा के 9, पंजाब के 3, सिंध के 2 अजला मुतासिर हैं। बलोचिस्तान में खुस्तार, अवारान, नौशकी, चाकी, गवादर, अथल, केच, पंचकोर, खारान, कोयटा के अलावा दीगर अजला मुतासिर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान, टांग, शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान, डकी मरवत, करक, कुरम, पिशावर और खैबर पख्तूनख्वा के अजला मुतासिर हुए हैं। इसी तरह से पंजाब में भक्कर, डेरा गाजी खान और मियांवाली में टिड्डी दल मौजूद है, जबकि सिंध में नौशहर फिरोज, शहीद बेनजीर आबाद में टिड्डी दल के हमले किए हो रहे हैं। NDMA के तर्जुमान के मुताबिक टिड्डी दल से मुतासरा इलाकों का सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन भी जारी है। कुल 1125 टीमों ने लोकस्ट कंट्रोल ऑपरेशन में हिस्सा लिया। तर्जुमान के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 3,57,000 हेक्टेयर रकबे का सर्वे हुआ और 3,600 हेक्टेयर रकबे का टिड्डी दल को तल्फ करने वाली अद्वियात का स्प्रे भी किया गया। तर्जुमान ने बताया कि बलोचिस्तान में 2,400 हेक्टेयर रकबे पर स्प्रे किया गया है, जबकि पंजाब में 200 हेक्टेयर रकबे पर स्प्रे किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में 700 हेक्टेयर रकबे की ट्रीटमेंट हुई है, जबकि सिंध में गुज़श्ता रोज 300 हेक्टेयर रकबे पर ट्रीटमेंट किया गया और अब तक पूरे मुल्क में 5,15,600 हेक्टेयर रकबे पर स्प्रे किया जा चुका है। सनत और पैदावार के विफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के दौर में पाकिस्तान स्टील मिल्स खसारे में गई और मुस्लिम लीग नून के दौर में उसे बंद कर दिया गया। पाकिस्तान स्टील मिल्स 230 अरब रुपए के कर्जे और नुकसान में है। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए विफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा कि गुज़श्ता 5 साल से पाकिस्तान स्टील मिल बंद है। हुकूमत माहाना 70 करोड़ रुपए अदा कर रही है। उन्होंने कहा कि 2015 से तनख्वाहों की मद में अब तक 35 अरब रुपए अदा किए जा चुके हैं। 2008 से अब तक तकरीबन 90 अरब रुपए के मुख्तलिफ हुकूमतों ने बेल आउट्स दिए और दूसरी किस्म की सपोर्ट दी इस इदारे को दोबारा खड़ा करने के लिए, लेकिन बदकिस्मती से वो ना हो सका। 70 करोड़ रुपया माहाना हुकूमत पाकिस्तान जो है उसको अदा भी करना पड़ता है इनकी तनख्वाहों की सूरत में और नुकसानात की सूरत में और सूद की सूरत में जो हुकूमत जो है वो अदा कर रही है। हमाद अजहर ने कहा कि इदारे की बहाली के लिए हमें मुश्किल फैसले करने हैं। स्टील मिल की बहाली के लिए निजी शोबे की शराकत जरूरी है। जो प्राइवेटाइजेशन का हमारा प्लान है वो सिर्फ जो कोर स्टील मिल के ऑपरेशन हैं जो तकरीबन 1800 एकड़ जमीन के ऊपर हैं उसको लीज आउट करने का है और उस स्टील मिल के जो मशीनरी है वो इस हिस्से के ऊपर लगी हुई है। इसके अलावा जो तकरीबन 17 से 18 हज़ार एकड़ है वो पाकिस्तान स्टील मिल कॉरपोरेशन की मलकियत में ही रहेगा और तकरीबन 15 के करीब पार्टीज जो हैं वो इसमें इंटरेस्टेड हैं। हमने फैसला किया कि 2 फेजेज में इसके मुलाजमीन जो हैं उनको टर्मिनेट किया जाएगा। तो एक पैकेज के जरिए किया जाएगा जिसके अंदर उनको 1 महीने की तनख्वाह से ज्यादा उनकी रिटायरमेंट ड्यूज जिसमें प्रोविडेंट फंड है उनकी ग्रेच्युटी है वो अदा की जाएगी। टोटल खर्चा हुकूमत का इस पे 20 अरब रुपए आएगा। विफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा कि स्टील मिल को बंद करने वालों की जानिब से सियासी बयानबाजी काबिल अफसोस है। फाज जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। नाज़रीन, दुनिया भर में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 66,88,000 से जायद हो गई है और 3,92,000 से जायद जान की बाजी हार गए हैं, जबकि 32,28,000 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। और अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका में इस वक्त दुनिया का सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्क है। वहां पर 19,23,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर और 1,10,000 से ज्यादा वायरस की वजह से हलाक हो चुके हैं। ब्राजील में तकरीबन 34,000 अफराद हलाक, जबकि 6,13,000 के करीब लोग वायरस से मुतासिर हो चुके हैं।
रूस में 4,41,000 से ज्यादा अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। स्पेन, इंग्लैंड, इटली और जर्मनी में वायरस के फैलाव में कमी आ रही है। भारत में 2,21,000 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि 6,363 अफराद जान की बाजी हार गए। बरतानिया ने 15 जून से बसों, ट्रेनों और जहाजों पर सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए मास्क का इस्तेमाल करना लाजमी करार दिया है। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ग्रांट शॉप्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि छोटे बच्चे, माजूर अफराद और जो लोग सांस की बीमारी में मुब्तला हैं वो इस हुक्म से मुस्तस्ना होंगे। उन्होंने कहा कि हम वही कर रहे हैं जो दुनिया के दीगर कई ममालिक कर रहे हैं। हमें अपनी पूरी कोशिश करना होगी कि एहतियात करें। ग्रांट शॉप्स ने कहा कि मास्क पहनने से मुकम्मल बचाव तो नहीं हो सकता, लेकिन किसी हद तक तहफ्फुज मिल सकता है। जो अफराद जो मास्क नहीं पहनेंगे उन्हें सफर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी और जुर्माना आयद किया जाएगा। अमरीकी पुलिस एहलकार के हाथों कत्ल होने वाले सियाफाम शहरी जॉर्ज फ्लॉयड की आखिरी रस्मात मिनियापोलिस शहर में अदा कर दी गई, जिसमें जॉर्ज फ्लॉयड के खानदान के अफराद और सियासतदानों समेत सैकड़ों अफराद ने हलाक होने वाले शहरी को खिराज अकीदत पेश किया। कई शहरों में नवे रोज भी लोग कर्फ्यू को नजरअंदाज करते हुए सड़कों पर निकल आए और सियाफाम शहरी की हिलाकत पर शदीद एहतजाज किया। न्यूयॉर्क शहर में ब्रुकलिन ब्रिज पर भी हजारों अफराद सियाफाम शहरी की हिलाकत के खिलाफ एहतजाज करने निकल आए और सियाफाम शहरियों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक के खात्मे का मुतालिबा किया। दूसरी तरफ बरतानिया में भी अमेरिका में हलाक होने वाले सियाफाम शहरी जॉर्ज फ्लॉयड की हिलाकत के खिलाफ एहतजाज किया गया। बर्मिंघम में पुलिस हेडक्वार्टर के सामने सैकड़ों अफराद ने हाथों में ब्लैक लाइव्स मैटर के पोस्टर उठाए हुए थे और लेबनान में अमेरिकी यूनिवर्सिटी ऑफ बैरूत के सामने भी जॉर्ज फ्लॉयड के खानदान से इजहार हमदर्दी के लिए दर्जनों अफराद जमा हुए और मुजाहिरीन ने हाथों में मोमबत्तियां और प्लेकार्ड उठा रखे थे। दुनिया भर में जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों में नस्ली तासुब के खात्मे का मुतालबा किया गया है। आगे बढ़ते हुए खबर आप तक पहुंचाएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मंशूर और अपने वादे के मुताबिक जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल आईजी पुलिस की तैनाती का फैसला किया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अपने ट्वीट में कहा कि इन असामियों पर जल्द ही ऑफिसर्स की तैनाती कर दी जाएगी। 1 जुलाई से ये अफसरान अपने फराइज अंजाम देना शुरू कर देंगे। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार झान मज़ारी मीर बंगला गए, जहां पर डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने वज़ीर आला का खैर मकदम किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने मरी बंगले में दीवान खास का दौरा किया और 140 साल पुरानी इमारत के कदीम तर्ज तामीर में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने वज़ीर आला को तारीखी और नायाब तस्वीर के बारे में आगाह किया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक की ज़ेर सदारत इजलास में कोरोना वायरस की सूरत हाल और SOPs पर अमल दरामद का तफसीली जायजा लिया गया है। चीफ सेक्रेटरी ने इंतजामिया और पुलिस अफसरान को हिदायत की कि बाजारों और तिजारती मराकज़ में एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाया जाए और इस सिलसिले में किसी के साथ भी नरमी इख्तियार न की जाए। उन्होंने कहा कि अवाम की सेहत और कीमती इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। जहलम में भी कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। महकमा सेहत के मुताबिक काला गुजरा में एक ही घर के 23 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं और इलाके में मरीजों की तादाद 283 तक जा पहुंची है। नईम भट्टी की रिपोर्ट। जहलम के नवाई इलाका काला गुजरा के मोहल्ला गुलाबाबाद में अदम एहतियात के बायस एक ही किराने के 23 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो गए, जिन्हें घर तक महदूद कर दिया गया। जिला भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 283 हो गई। जिला इंतजामिया ने मोहल्ले के तमाम अफराद के कवायफ और मालूमात जमा कर ली। घर घर आकर उन्होंने रिपोर्ट पूछा तो बहुत तसल्ली हमें हुकूमत पाकिस्तान हुकूमत पंजाब बहुत ताउन कर रही है। महकमा सेहत के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासरा अब तक 193 अफराद बेजाब होकर घरों को जा चुके हैं, जबकि 86 मरीज जेर इलाज है और 4 कोरोना वायरस से शिकार अफराद की अमवात वाक़या हुई है। सारी पाबंदियां लगा रही है, हमारे फायदे के लिए लगा रही है ताकि हमें ये बीमारी ना लगे, क्योंकि इसका इलाज भी अभी तक मुमकिन नहीं हुआ। और घरों से कम निकले, सैनिटाइजर वगैरह यूज कर लिया करो और वो मतलब जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो कायम रखे अपने दरमियान। ये गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, तो अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द कोरोना का खत्म हो जाएगा। जेलों में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। शहरी इसको संजीदा नहीं ले रहे हैं। काफी तादाद हुई थी,
खुद को और दूसरों को कोरोना वायरस से महफूज रखा जा सकता है। नई बत्ती, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, जेएलएम। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर में 49वें स्टाफ कोर्स के कन्वोकेशन का इनेकाद किया गया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक कमांडेंट पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज रियर एडमिरल मोहम्मद जुबैर शफीक तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में कोर्स मुकम्मल करने वाले 93 अफसरान को मैरीटाइम वॉर स्टडीज में मास्टर्स डिग्री तफवीज की गई। कोर्स में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के अलावा दोस्त ममालिक के 25 अफसरान भी शरीक थे। मेहमान खुसूसी ने कोर्स मुकम्मल करने वाले अफसरान को मुबारकबाद दी और कोविड-19 के बाद दुनिया के तब्दील शुदा हालात के लिए तैयार रहने की जरूरत पर जोर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद जंगी सलाहियतों पर समझौता किए बगैर ऑपरेशनल उमूर सर अंजाम देना होंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, 22 मई को कराची में हादसे का शिकार होने वाले मुसाफिर तैयारे का बेशतर मलबा उठा लिया गया है। तैयारे का इंजन जिस मकान की छत पर गिरा था, स्ट्रक्चरिंग टीम ने इसका मुआयना भी किया है। तफसील जानेंगे मोहम्मद जुबैरुद्दीन की इस रिपोर्ट में। कराची में हादसे का शिकार होने वाले जहाज का मलबा जाए हादसे से उठा लिया गया है। ताहम PIA, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी समेत दीगर मुताल्लिका इदारों की टीमों ने उस घर की छत का मुआयना किया जहां इंजन और जहाज के पर गिरे थे। PIA के तर्जुमान के मुताबिक भारी क्रेन से इंजन और परों को उठाने की सूरत में शवाहिद मुतासिर होने के साथ साथ घर भी गिर जाने का खदशा है, जिसकी वजह से मुताल्लिका टीमों ने जदीद तकनीक और दीगर ऑपरेशन के तहत इस उमूर को आइंदा दिनों में मुकम्मल करने का इंदिया दिया है। तर्जुमान का कहना है कि 22 मई को होने वाले अफसोसनाक और अंधोनाक सानहे में 91 मैयतें विरसा के हवाले कर दी गई हैं, जबकि वन विंडो ऑपरेशन ताहाल जारी है और PIA शुहदा के विरसा के मुकम्मल इत्मीनान तक उनकी मुकम्मल मदद करते रहेगा। मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि दुनिया रमा साल कई तरह के माहौलियाती बहरानों का शिकार है और कहीं आपको बता चलें कि बारन जंगल आग के शोलों से धुक रहे हैं तो कहीं तूफान, गर्द बारान और सैलाबी रेलों ने तबाही मचा रखी है। अफ्रीका और जनूबी एशिया में टिड्डी दल के हमले और कोरोना वायरस की वबा हमें मुतनब्बे कर रही है कि अगर हमने आलमी माहौल की जानिब तवज्जो ना दी तो हालात इससे भी खराब हो सकते हैं। और इस हसास मसले की जानिब दुनिया ने तवज्जो दिलाने और इस बारे में शऊर और आगाही को फरोग देने के लिए आज आलमी यौम माहौल मनाया जा रहा है। रवां साल ये दिन हयातियाती तनव्वो के तनाजुर में मनाया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक ये अदादोशुमार इस वक्त तकरीबन 10 लाख अनवाह मादूमियत के खतरे से दो चार हैं और यही वजह है कि माहौली निज़ाम और हयातियाती तनव्वो की बका की तरफ फौरी तवज्जो देने की अशद जरूरत है। इंसानी जिंदगी का दारोमदार तमाम तर तरक्की के बावजूद आज भी माहौल पर है और हमें जीने के लिए दरकार पानी, खुराक और हवा वगैरह सभी कुछ फितरत फराहम करती है। ताहम इसके अलावा हमारा तर्ज जिंदगी अपने ही खिलाफ जंग के मुतरादिफ है। नाज़रीन, इंतजार की घड़ियां खत्म। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने सियाहती मकामात के लिए SOPs की मंजूरी दे दी। तफसील साजिद अख्तर से। कोरोना वबा की वजह से सयाहत का शोबा बुरी तरह मुतासिर हुआ है। लॉकडाउन और आवाम के लिए सयाहती मकामात की बंदिश की वजह से मुल्क के खूबसूरत इलाके इस साल सयाहों के मुंतजिर रहे, लेकिन इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने को है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सयाहती मकामात आवाम के लिए मरहलावार खोलने का फैसला किया है। वज़ीर आला महमूद खान की सदारत में होने वाले सूबाई काबीना के इजलास में खुसूसी तौर पर सयाहती मकामात के लिए SOPs की मंजूरी दी गई, जिनमें फेस मास्क और दस्ताने पहनने को लाजमी करार दिया गया है। SOPs के मुताबिक होटल्स मालिकान के लिए सयाहों को सैनिटाइजर, साबुन और साफ पानी की फराहमी, मेहमानों की स्क्रीनिंग और समाजी दूरी को यकीनी बनाना लाजमी करार दिया गया है। SOPs के तहत आवामी आगाही के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने का भी फैसला किया गया है। सयाहती मकामात पर जिले इंतजामिया, होटल इंतजामिया, टूरिज्म से मुताल्लिका एसोसिएशन पर मुश्तमिल कमेटी अभी तश्कील दी जाएगी जो SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएगी। इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए सूबाई मुशीर इत्तलात अजमल वजीर ने बताया कि पहले मरहले में फैमिलीज को सियाहती मकामात तक जाने की इजाजत होगी, जबकि दूसरे मरहले में आम लोगों के बारे में फैसला किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सयाहती मकामात खोलने का हतमी फैसला वफाकी हुकूमत की मुशावरत से किया जाएगा। मुशीर इत्तलात ने बताया कि वज़ीर आला महमूद खान ने सूबे में पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत का सख्ती से नोटिस दिया है। पेट्रोलियम की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है, जबकि कई पेट्रोल पंप्स को सील किया गया है। काबीना ने खैबर पख्तूनख्वा लैंड एक्विजिशन रूल्स 2020 की मंजूरी दी। सूबाई काबीना ने खैबर पख्तूनख्वा प्रेजेंस तरमीमी एक्ट 2020 की मंजूरी दी।
जिसे बाद में सूबाई असम्बली में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। तरमीम का मकसद जेलों के लिए वेलफेयर फंड का क़याम, स्किल और वोकेशनल डेवलपमेंट के लिए जेलों में सनतों को रेगुलेट करना और जेलों और कैदियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। काबीना ने पंजाब की तरफ से आटे की तरसील पर मुसलसल पाबंदी को खिलाफ आईन करार देते हुए वज़ीर-ए-आला पंजाब और वफाकी हुकूमत से अपील की कि वो बर वक्त मुदाखलत करके इस मसले को हल करे ताकि आने वाले दिनों में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को किसी किस्म के मुश्किल का सामना न हो। काबीना ने महकमा खुराक को हिदायत की कि मकामी तौर पर गंदम की खरीदारी के लिए ज़िली इंतजामिया के ताउन से भरपूर कोशिशें जारी रखें। साजिद अख्तर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद अवाम तक इसके समरात पहुँचाने के लिए सिंध हुकूमत को मरबूत इक़दामात करने की ज़रूरत है। सूबे में ज़रूरी अशिया की कीमतों में इजाफा और अवाम के तासुरात के बारे में कराची से रिपोर्ट जानेंगे ज़िशान अहमद की। वज़ीर आज़म इमरान खान की अवाम को रिलीफ देने की पॉलिसी उनके विजन का हिस्सा है और इसके लिए वफाक की जानिब से हर वो कदम उठाया जा रहा है जिससे अवाम को फायदा पहुंचे। इस ज़िम्न में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो की गई है, ताहम सिंध हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी के बायस अवाम तक वफाकी हुकूमत के इस इकदाम का फायदा बराह रास्त नहीं पहुँच रहा। अवाम की मुश्किलात बदस्तूर वैसी ही हैं और वो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। लेकिन अब 10 सूबे 20 सूबे 30 सूबे जब पेट्रोल सस्ता हो रहा है उसको अवाम को कोई किसी किस्म का फायदा नहीं है। चीजों की कीमतें वही हैं, किसी चीज में कोई फर्क नहीं आया, कुछ भी कम नहीं है। ये तो अवाम को बस दबाने वाली बात है। पेट्रोल कितना कम हो गया, 3 दफा कम हो गया, एक पाई भी नहीं कम हो रही यार किसी चीज पे। जैसे डीजल सस्ता किया है, फ्रूट भी ऐसे सस्ता कर रहे, सब्जी भी ऐसे सस्ता कर रहे। इनके पेट भरे हुए हैं, इनको अवाम की कोई फिक्र नहीं है, अवाम भूखी मर रही है। लॉकडाउन जैसी मुश्किल घड़ी में वजीर आजम इमरान खान की जानिब से एहसास प्रोग्राम के तहत जरूरतमंदों को नकद रकूम फराहम की गई है। इसके अलावा यूटिलिटी स्टोर्स पर जरूरी अशिया की कीमतों में नुमाया कमी की गई है और अब पिछले 3 माह से हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल कमी की जा रही है, जिसके बाद अब अवाम सिंध हुकूमत की जानिब देख रहे हैं कि वो महंगाई की इस लहर को कम करने में अपना किरदार कब अदा करेगी। हमारी टीमें शहर में निकली हुई हैं, हमने चिकन के रेट्स पे, दूध के रेट्स पे काफी लोगों के चालान किए हैं। फ्यूल की प्राइस इतनी कम हुई हैं तो बाकी भी चीजों की जिसे कहते हैं कम होनी चाहिए। कुछ जगह कम हुई है लेकिन हमने उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अशिया खुर्दनोश, आटा, दाल, चावल, चीनी, कुकिंग ऑयल और जरूरी अशिया की कीमतों को कंट्रोल करना नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के अलावा सूबाई सतह पर प्राइस कंट्रोल की भी जिम्मेदारी है कि इन अशिया की कीमतों की हफ्तावार बुनियाद पर निगरानी करें और वफाकी काबीना की तरफ से हिदायत के मुताबिक इनकी कीमतें नीचे लाने के लिए तरीक़ाकार वज़ा करें। शहरी इंतजामिया और सूबाई हुकूमत भी महंगाई को कम करके आवाम को रिलीफ देने के इकदाम करे ताकि पेट्रोलियम कीमतों की मसनूआत में कमी को असबरात आवाम तक पहुँच सके। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। पाकिस्तान टेलीविजन आज से अर्तुगरुल गाजी हफ्ते में 4 दिन रात 7:55 पर नशर करेगा। मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान टेलीविजन आमिर मंसूर के मुताबिक मैनेजमेंट का ये फैसला अर्तुगरुल गाजी की बेपनाह मकबूलियत और नाज़रीन के पुरजोर इसरार पर किया गया है। अर्तुगरुल गाजी की हफ्तावार इक़्तिसाद पीटीवी होम पर अब हर जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता और इतवार रात 7:55 पर नशर की जाएंगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए आपको लिए चलते हैं। मरीजों के लिए 5473 बेड्स मुख्तस है। टोटल आईसीयू बेड जो है वो 533 है। इस वक्त कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस वेंटिलेटर्स जो है उसकी कुल तादाद 508 है। अच्छा, फिर इस तरीके से ये पूरा मैंने आपको खैबर पख्तूनख्वा का बताया। इस तरीके से हमारा जो मेन हॉस्पिटल है पेशावर का LRH लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर में टोटल बेड्स जो है हमारे पास टोटल कैपेसिटी 1800 बेड्स है और 63 वेंटिलेटर्स हैं, जिनमें 105 बेड्स और 25 वेंटिलेटर्स कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस है। और इस तरीके से खैबर टीचिंग अस्पताल में 1300 बेड्स और 56 वेंटिलेटर्स है, जिनमें 55 बेड्स और 25 वेंटिलेटर्स कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस है। इस तरीके से हमारे पास HMC है,
हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स, उसमें हमारे पास 1250 बेड्स और 52 वेंटिलेटर्स हैं। 25 वेंटिलेटर्स और 128 बेड्स कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस है। इस तरीके से हमारे पास आयूब टीचिंग हॉस्पिटल एबटाबाद में टोटल जो कैपेसिटी है वो 1250 बेड्स है और 25 वेंटिलेटर्स है। इसमें जो है खैबर टीचिंग हॉस्पिटल हमारा जो है KTH, मैंने मेरे ख्याल में पहले जिक्र किया, लेकिन अगेन खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में 1300 बेड्स और 56 वेंटिलेटर है, जिनमें 25 बेड्स और 25 वेंटिलेटर्स कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस है। तो हमारे पास इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में अल्हम्दुलिल्लाह बेड्स की कमी नहीं है, हमारे पास वेंटिलेटर्स की कमी नहीं है। इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो अल्लाह के फजल करम से बहुत अच्छे तरीके से, हमारे डॉक्टर्स, हमारे जो हीरोज है, हमारा पैरामेडिक स्टाफ, हमारा पूरा तिबी अमला फ्रंट लाइन पे मौजूद है, दिन रात एक करके काम कर रहे। और फिर आपके सामने है कि हमारे डॉक्टर्स इस कोरोना वबा की फ्रंट लाइन पे जो डॉक्टर्स थे, सीनियर तरीन डॉक्टर्स थे, उन्होंने अपनी जानों की परवाह नहीं की और इसमें वो शहीद हुए हैं कोरोना वबा के इस में अपनी आवाम की जानों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो इस में मैं अगेन अपने डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ, तिबी अमला और फिर हमारे इस वक्त रिलीफ डिपार्टमेंट, रेस्क्यू 1122, पुलिस, इस तरीके से हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट, हमारा रिलीफ डिपार्टमेंट, हमारा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट 24/7 हम काम कर रहे हैं। और हमारा एक ही मकसद है कि हम अपनी आवाम की तहफ़्फ़ुज़ हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। उसमें मैंने कल भी ये जिक्र किया, मैं आज के इस तमाम डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग मेरे डिपार्टमेंट के अफसरान जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, उसको भी कोरोना जो है वो 2-3 लोगों में पॉजिटिव आया है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हमारे सूबे के वज़ीर आला महमूद खान साहब खुद फ्रंट लाइन पे है, खुद हम हर जगह पे पहुंच रहे हैं। हमने पहले दिन से जब कोरोना वबा आया है, हमने ये फैसला किया कि हमारी जानों से ज्यादा हमारी आवाम की जानों का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। तो इसलिए चाहे क्वारंटाइन सेंटर हो, चाहे आइसोलेशन सेंटर हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे ICU वार्ड्स हो, हमने अपनी जानों की परवाह नहीं की। हम मौके पे गए, हमने डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ, तिबी अमला के साथ इजहार यकजहती की और साथ साथ हमने जब हमारे डॉक्टर शहीद हुए, हम खुद गए वज़ीर आला महमूद खान साहब के क़यादत में, और हमारे मीडिया के जो हमारे भाई हैं इस वक्त फ्रंट लाइन पे, वो भी हमारे साथ है लोगों को अवेयरनेस देने के लिए। उसमें खैबर पख्तूनख्वा के काफी मेरे भाई, मेरे दोस्त, मीडिया के लोग में कोरोना वायरस पॉजिटिव आया। और एक फखरुद्दीन का मैं जिक्र करूंगा, उसकी भी शहादत हुई है। फ्रंट लाइन पे उन्होंने इस मुहिम को अवेयरनेस के लिए वो सबसे आगे थे। तो ये वक्त है कि इसमें हमने 2-3 चीजें जो है वो हमने करनी है। इस सूबे पे इससे पहले टेररिज्म आया,
इस सूबे पे जलजले आए, इस सूबे पे सैलाब आए, इस सूबे पे बहुत मुश्किल वक्त आए, लेकिन इस सूबे के अवाम, इस सूबे के हर मकाते बेफिक्र से ताल्लुक रखने वाले हमारे जो बहादुर जवान हैं, चाहे वो जिस डिपार्टमेंट से हो, फ्रंट लाइन पे रहे, अपनी जानों की परवाह न करते हुए अपने अवाम के लिए उन्होंने कुर्बानियां दी है। और इंशाअल्लाह ताला हम उसी पैटर्न पे जा रहे, हम अपनी आवाम के साथ खड़े होंगे। हमारे जितने वसाइल है, हमारे सीएम वजीर आला महमूद खान साहब ने फैसला किया है कि उस समय अपने आवाम पे वो कुर्बान है। दो तीन चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक ये कि फैसला आज भी एनसीओसी की मीटिंग जो असद उमर साहब ने चेयर किया, उसमें भी डिस्कशन हुई है। हमने ये जितने नरमियां दी है, वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का वो विजन है कि हमने एक तरफ से कोरोना वबा के इस जो वबा है इससे अपने अवाम की तहफ़्फ़ुज़ करना है, और साथ हमने जिंदगी को रवा दवा रखने के लिए मईशत, कारोबार, गरीब, गुर्बत के लकीर से नीचे रहने वाले लोग और इस तरीके से तमाम मकाते बेफिक्र के लोग, उसका भी हम साथ साथ चला रहे। उसमें जो नरमियां दिए हमारे सूबे में हमारे वजीर आला साहब ने, उसके लिए हमने एसओपीज दिए। अब उस एसओपीज का मकसद यह है कि हमने अपनी आवाम की जानों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए एसओपीज दिए। उसमें हमारे उस कारोबारी हजरात, हमारे ट्रांसपोर्टर, हर मकाते बेफिक्र के लोग, उनका तहफ़्फ़ुज़, और फिर उनके पास जो लोग आते हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ इस कोरोना वबा से, वो इस सूरत में मुमकिन है कि हम उस एसओपीज पे अमल दरामद करें। बार बार इस बात को हम कर रहे हैं, और कोरोना वबा एक खतरनाक आपके सामने, हमारे सामने लोग शहीद हो रहे। तो इस मौके पे जो एसओपीज है उसके हवाले से पिछले 2-3 दिन से हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पे एसओपीज पे अमल दरामद नहीं हो रहा, वहां पे उसी वक्त, चाहे वो प्लाजा हो, चाहे वो मार्केट हो, चाहे वो दुकान हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो जिस चीज में हमने नरमियां की, एसओपीज दी, उस पर अमल दरामद नहीं होगा, उसके खिलाफ हमने एक्शन लिया और हम आगे एक्शन लेंगे। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि इस वक्त हमने दोनों चीजों को साथ साथ चलाना है। हुकूमत सख्ती अगर करती है तो वो इसलिए कर रही है कि उसको अपनी आवाम की जान का तहफ़्फ़ुज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई कोरोना वबा आपके सामने, ये जब हम बाहर निकलते हैं गैर जरूरी, और इस तरीके से हम एहतियाती तदाबीर, एसओपी, समाजी दूरी और प्रॉपर मास्क और वो चीजें, जब आप गैदरिंग में जाते हैं, आप एक ऐसी जगह पे जाते हैं, तो आप अगर वो नहीं करेंगे तो उस कोरोना वायरस को अपने साथ लेकर अपने घर लेकर जा रहे हो, और फिर आपके घर, आपकी फैमिली, आपके प्यारे, आपके बुजुर्ग, आपके जवान, आपके बच्चे, हमारे माए बहने, उनको ये कोरोना वबा लग जाती है, और फिर इस तरीके से उस पूरे मोहल्ले, पूरे इलाके, पूरे टाउन, पूरे डिस्ट्रिक्ट, और फिर पूरे सूबे, और फिर पूरे पाकिस्तान में ये वबा इस तरीके से फैल रही है। अब हमने करना यह है कि ये कोई इतना मसला नहीं है, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि अगर मैं अभी मीडिया के सामने, क्योंकि मेरे से सोशल डिस्टेंस में है लोग, तो मैंने इसलिए वो किया, अदरवाइज ये इसलिए है, और ये कपड़े से भी बन सकता है,
اس کے بہت سارے طریقے گھروں میں لوگ بنا سکتے ہیں ماسک اگر ہم یہ استعمال کریں، اور دوسرا صابن سے اپنے ہاتھوں کو دھوئے۔ تیسرا یہ کہ ہم سوشل ڈسٹینسنگ کا مقصد سماجی دوری ہے، وہ احتیاط ہم ایک دوسرے کے ساتھ کریں۔ جب کورونا وبا کو ہم شکست دے دیں گے تو پھر یہ ملنا جلنا ہوگا، یہ زندگی ہوگی اس کے ساتھ۔ لیکن اس وقت پوری دنیا میں گلوبلی یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، علاج یہی ہے کہ احتیاط احتیاط اور احتیاط کریں۔ اس طریقے سے ہم نے پورے صوبے میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو کہا ہوا ہے، وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کے انسٹرکشن ہے، چیف سیکرٹری صاحب ہمارے اللہ ان کو صحت دے، ان کو بھی کرونا وائرس جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ لیکن وہ اپنے جو ڈیوٹیز ہے وہ اپنے گھر سے کوارنٹائن ہو کر نبھا رہے ہیں بڑے زبردست طریقے سے، بڑا اس کا حوصلہ ہے۔ تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن وہ سارے جو ہے وہ ساری چیزیں مانیٹر ہو رہے ہیں۔ دوسرا پیٹرول کے حوالے سے میں بات کروں گا۔ پیٹرول کا ہمیں پتہ چلا ہے اور اس کے اوپر آلریڈی ایکشن لیا گیا ہے اور ہم ایکشن لیں گے۔ کسی صورت میں پیٹرول جو لوگ اس کو ذخیرہ اندوز کر رہے ہیں اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ اس کے لیے آرڈیننس ہم لے کر آئے ہیں، بغیر وارنٹ کے چھاپا ہوگا اور اس کے بعد وہ جو مال ہوگا وہ ضبط ہوگا، اس کا 50% جو ہے 3 سال قید، اور جو اس کا اطلاع دے گا اس میں سے اس ضبط شدہ مال میں سے 10% اس کو ملیں گے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ صوبے کے اسپتالوں میں کورونا مریضوں کے لیے ہر ممکن انتظامات کیے گئے ہیں۔ اور اب خبریں شامل کریں گے کھیل کے میدان سے۔ کھیلوں کی خبروں میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں آسٹریلوی کرکٹ بورڈ پر نئے بھونچال کا خطرہ منڈلانے لگا ہے۔ بورڈ ہر صورت معاوضوں سمیت تمام اخراجات میں 25% کٹوتی پر ڈٹ گیا، تاہم کرکٹرز نے آمدنی تخمینہ مسترد کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق کرکٹ آسٹریلیا کے چیف ایگزیکٹو کیون رابرٹس نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ بورڈ کو اگلے مالی سال میں $150 ملین سے زیادہ کا نقصان کا خدشہ ہے۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر ثقلین مشتاق نے ہائی پرفارمنس سینٹر میں اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ ثقلین مشتاق ہائی پرفارمنس سینٹر میں ہیڈ آف انٹرنیشنل پلیئرز ڈیولپمنٹ تعینات ہو گئے ہیں۔ 45 سالہ ثقلین مشتاق نے 10 جون کو جوائن کرنا تھا، تاہم انہوں نے پہلے ہی دستیابی دے دی ہے۔ ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس ندیم خان نے 1 جون کو چارج سنبھالا تھا۔ نیوزی لینڈ میں موجود ہیڈ آف ہائی پرفارمنس کوچنگ گرینٹ براڈ برن فضائی آپریشن کی معطلی کے باعث فی الحال چارج نہیں سنبھال رہے ہیں۔ اسپورٹس ڈیسک سے اب تک کے لیے اتنا ہی، اب چلتے ہیں مین ڈیسک کی جانب۔ شکریہ شفیق۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اختتام کو پہنچا۔ سمینہ رانا اور علی جنت کو نیوز ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے گا۔ کسی بھی خبر کی تفصیل جاننے کے لیے ہمارے وزٹ کیجیے اور دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ DW کی دنیا دیکھیے ہر سوموار سے جمعہ شام 5:30 بجے صرف BTV نیوز پر۔
دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی۔